شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی سندھ سرکار نے 27 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کے روز تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سمیت تمام لوکل کونسلز بند رہیں گے۔ تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا چھٹی کا اعلان کر دیا گیا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آزاد نوہڑیوں سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی سندھ سرکار نے 27 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ پیر کے روز تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے، تمام لوکل کونسلز بھی بند رہیں گے۔ کووڈ سے نمٹنے کے لیے کام کرنے والے شعبہ جات کھلے رہیں گے۔ محکمہ سروسز 27 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ آزاد نوہڑیوں سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ آزاد نوہڑیوں، بتائیے گا چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے سرکار کی جانب سے؟ جی بالکل، وادی میران کی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی مناسبت سے سندھ سرکار نے 27 دسمبر یعنی پیر کے روز عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 27 دسمبر پیر کے روز صبح بھر کے تمام سرکاری نیم سرکاری ادارے اور کونسل بند رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ پر کام کرنے والے جو مختلف شعبے جاتے ہیں یہ کھلے رہیں گے، لیکن یہ تمام ادارے 27 دسمبر کو مکمل طور پر بند رہیں گے۔ جی بہتر، آزاد نوہڑیوں، آپ کا شکریہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری کا منفی اختتام ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 162 پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس 44,177 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری مندی کا رجحان ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 162 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 44,177 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری منفی اختتام ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 162 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 44,177 کی سطح پر بند ہوا۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تولہ سونے کی قیمت میں 150 اضافے سے 1,25,450 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے میں 129 روپے اضافے سے 1,07,553 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت میں 150 روپے اضافے کے بعد نئی قیمت 1,25,450 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے میں 129 روپے اضافے کے بعد نئی قیمت 1,07,553 روپے ہو گئی ہے۔ بات کریں گے گیس کے بحران کی۔ گیس کے بحران سے ہر کوئی پریشان ہے۔ شہر قائد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ کے مکین گیس کی آنکھ مچولی سے ذہنی اذیت سے دوچار ہو گئے۔ کپتان حکمران سنگین ہوتا گیس کا بحران، تاجر، ہوٹل مالکان، گھریلو صارفین سمیت ہر کوئی پریشان۔ شہر قائد میں گیس کے بحران نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ کے مکین کہتے ہیں گیس آتی نہیں، اگر آ بھی جائے تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت پریشانی ہے، صبح سے اٹھے ہوتے ہیں بس یہی ٹینشن رہتی ہے کہ اب چولہا تیز ہو تو روٹی بنائے، ناشتہ بنائے۔ بچی ہے وہ کوئی ڈبل روٹی نہیں پسند کر سکتا تو ڈبل روٹی کی مجبوری کی تحت پہ کھانا پڑتا ہے، وہ بھی سیک کے بغیر۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں، جو مہنگا پڑتا ہے۔ گیس تو آتی نہیں ہے، مطلب پورا دن ہو جاتا ہے، ایک گیس نام کو نہیں ہے۔ صحیح ہے، کسی کے گھر میں اگر 6-7 بندے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم باہر سے بھی منگوائیں تو 2,000 روپے تو وہیں پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا اتنا پریشانی ہے، صبح اٹھو ناشتے کا دل چاہتا ہے، پراٹھے کا دل چاہتا ہے، کوئی کچھ نہیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے کہ پراٹھا نہ روٹی ہم نے گھر کی کھائی ہو، اپنے آٹوں کی جو ہوتی ہے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی اور SSGC حکام کی غفلت نے شہریوں کے معمولات زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد ادریس نے کہا کہ پورے ملک کی برآمدات میں 52% حصہ کراچی کی صنعتیں ادا کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی گیس نہیں مل رہی۔ وزیراعظم سے اپیل ہے کہ چارٹرڈ آف اکانومی اور لمبے عرصے کی پالیسی لائی جائے اور تمام صنعتوں کو گیس دی جائے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، بتا رہے ہیں اشرف خان اپنی اس رپورٹ میں۔ گیس بحران پر صنعتکار پریشان، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سخت رد عمل دے دیا۔ کراچی چیمبر کے صدر محمد ادریس کا کہنا ہے کہ جس صوبے سے سب سے زیادہ گیس نکل رہی ہے اسی کو گیس نہیں دی جا رہی۔ کراچی میں 7 انڈسٹری زون کے صنعتکار شدید پریشان ہیں۔ ملکی برآمدات کا 52% حصہ دینے والے شہر کی صنعتوں کو گیس نہیں دی جائے گی، تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 52% ایکسپورٹ کراچی سے ہو رہا ہے، لیکن کراچی کو تباہ حال کیا ہوا ہے۔ ہر چیز میں ڈسکرمنیشن
हमें देखने में नज़र आती है कि जी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब 52% एक्सपोर्ट जो यहाँ से हो रही है तो हमें ही पहले गैस मिलनी चाहिए, जब निकल भी यहाँ से रही है यही मिलनी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि कराची के मसाइल के लिए फौरी वक्त निकालें, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी और लंबे अरसे की पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा वो इन बातों के लिए वक्त निकालें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आएँ। बहुत हो गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फलाना ये वो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आने की ज़रूरत है। एक बार बैठकर तमाम चीज़ों का फैसला करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मजीद कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी मतलूबा गैस प्रेशर नहीं मिल रहा, साथ ही नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस बंद कर दी गई है। इन फैसलों के 22 बरामदी ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल न होने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साल 2021 में भी गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। सूई सदरन गैस हुकाम ने साफ कह दिया कि गैस फील्ड से सप्लाई मुसलसल कम हो रही है। इसके बावजूद गैस लोड मैनेजमेंट के जरिए तलब और रसद के फ़र्क को पूरा किया जाता है। साल 2021 में सूई सदरन गैस की कारकर्दगी पर हबीब खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। साल 2021 में कराची गैस बहरान का शिकार रहा। साल के आगाज से इख्तिताम तक घरेलू, सनती, कमर्शियल और CNG सार्फिन सब ही परेशान रहे। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी के मुताबिक साल 2021 में सुई गैस ने 1,22,000 नए सार्फिन को सिस्टम में शामिल किया। नॉन रजिस्टर्ड सार्फिन की बड़ी तादाद है जिसके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ न्यूसेंस, जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर होता है, कस्टमर तो नहीं कहना चाहिए, अनरजिस्टर्ड यूज़र है, वो बेसिकली गैस थेफ्ट है। सलमान सिद्दीकी का कहना है कि साल भर में गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों, सजाओं और जुर्मानों का सिलसिला भी जारी रहा। अब तक गैस थेफ्ट ऑपरेशन में 3 अरब की चोरी पकड़ी जा चुकी है, जिसमें 2.5 अरब की रिकवरी की जा चुकी है। थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट बना, उसके तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पावर्स मिलने शुरू हुए, सुई सदर्न को भी, सुई नॉर्दर्न को भी, कि वो जो गैस चोरी के एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर गवर्नमेंट ने गैस कोर्ट सेटअप करने शुरू किए और ये गैस कोर्ट जो है एक्सक्लूसिवली जो गैस की चोरियाँ हैं इनकी हेयरिंग करते हैं। अच्छा, हमने अब तक जो अब समझें कि इन 4 सालों में जब से ये बना है सिस्टम, हमारा SSGCTO डिपार्टमेंट बना है, तकरीबन 3 अरब की जो हमने जो है वो चोरी की पकड़ी है इसके अंदर। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ SSG के सिस्टम में गैस की मिकदार कम हो रही है। गैस के नए कुएं मिल नहीं रहे और पुराने कुओं की पैदावार में कमी आई है। इस वक्त डिमांड 1240 और सप्लाई सिर्फ 1028 MMCFD है। तो तकरीबन 200 MMCFD का डेफिसिट है हमारा। हमारी जो सप्लाईज़ आ रही हैं हमारे पास, वो तकरीबन हमें जो मिल रही हैं सप्लाईज़ वो 1240 के करीब मिल रही हैं, और जो हमारी जो डिमांड है हमारी वो 1240 है, और जो सप्लाईज़ है हमारी वो 1028 की है। सुई गैस हुकाम का कहना है कि सिस्टम में कमी के बायस हर साल 200 MMCFD का शॉर्टफॉल आ रहा है। बुरहान को मद्देनजर रखते हुए घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। अदालती अहकामात पर नस्ला टावर को मिसमार करने का सिलसिला ताहाल जारी है। हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से ऊपरी मंजिल पर दीवारें और छतें तोड़ी जा रही हैं। ठेकेदार का कहना है कि 3 शिफ्टों में मजदूर काम कर रहे हैं। रात के औकात में लाइट का भी इंतजाम किया गया है ताकि काम को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। जुनेद फिरोज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 4 फैसल पे कायम 16 मंजिला नस्ला टावर को मिसमार करने का सिलसिला 28वें रोज भी जारी रहा। हैवी मशीनरी और औजारों की मदद से ऊपरी मंजिल पर छतें, दीवारें तोड़ी जा रही हैं। नस्ला टावर को मिसमार करने वाले ठेकेदार के मुताबिक ऊपर की 2 मंजिलों को मिसमार किया जा चुका है। 3 शिफ्टों में मजदूर काम कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हम 270 बंदे जो है एक टाइम में चला रहे, 270 बंदे जो है दूसरा टाइम पे, 270 बंदे जो है वो तीसरा टाइम पे। 3 शिफ्टों में हम काम कर रहे हैं और ऐसे कोई बात नहीं है अभी तक, वो इंशाल्लाह उतार रहे हैं। नस्ला टावर को रात के औकात में मिसमार करने के लिए जनरेटर पहुंचा दिया गया, जिससे लाइट्स रोशन करके काम किया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जुनेद फिरोज, सिटी 21। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। ताहम शहर में बढ़ती कीमतों के बायस अवाम काजू, पिस्ता, बादाम खाने से महरूम है। मौसम ठंडी ठार हवाएं, ऐसे में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। किसी को काजू पसंद तो कोई पिस्ता और कोई बादाम खाने का शौकीन, लेकिन महंगाई ने दिलकश मौसम का मजा भी किरकिरा कर रखा है। शहर कायद में 2000 में फरोख्त होने वाला पिस्ता 2200,
काजू 200 रुपए इजाफे के बाद 2000, जबकि बादाम 1800 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पाकिस्तानी अखरोट भी 200 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए फी किलो हो गया। एम्प्रेस मार्केट में खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर मायूस दिखाई देते हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई। अगर आम आप ड्राई फ्रूट के अलावा भी बात करें तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। जबकि दुकानदार कहते हैं कि रुपए की गिरावट और डॉलर की कदर में इजाफा हर चीज पर असरअंदाज हो रहा है। पिस्ता मुख्तलिफ रेट है, 1600 भी है, 1800 भी, 2000 भी है नमकीन पिस्ता, और अच्छी क्वालिटी में जो सादा पिस्ता है 3000 रुपये किलो भी है और 3200 रुपये किलो भी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि आम आदमी अपना गुजर बसर कर सके। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा रबिया खान, सिटी 21। यूरिया का बहरान पैदा हो रहा है। एमकेएम तमाम मामलात पर खामोश है। हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतर किया, निज़ाम पुराना ही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम के पास वोट की ताकत है, अवाम वोट के जरिए बदला लेते हैं। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। अक्सर लोग हमारे कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं है। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम वही है जो 2013 के कानून के तहत बना था। बल्दियाती निज़ाम वही है जिस पे पिछली बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। तो ये जो लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश, नया निज़ाम नामंजूर, ये बैनर भी लगा दिए, कोई नया निज़ाम नहीं है, निज़ाम पुराना ही है। बिजली की कीमतें फिर बढ़ाने की बात हो रही है। गैस का बहरान पूरे मुल्क में होगा, लेकिन कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, उसको आप सब भुगत रहे हो। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। गंदम के जो बहरान पैदा किया गया, जो गंदम की कीमत बढ़ी और लोगों की और हमारी और आपकी जेबों पे डाके डले, एमकेएम उस पर नहीं बोल रही है। नौजवानों को सियासत में लाने की बात करके वोट लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पता नहीं कि क्या सोचकर, कौन सी उम्मीदें बांधी थी, पीटीआई से उनको वोट दिया। दूसरी जानिब बल्दियाती निज़ाम पर बिल पर दस्तखत करना या ना करना गवर्नर साहब की मर्जी है। इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई इख्तियारात मुझे इजाफी नहीं मिले हैं, इख्तियारात वही हैं, बात नीयत की है। चाइना कटिंग के बायस तबाह होने वाले पार्क्स बहाल कर रहे हैं। ये काम जब मुत्तहिदा के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर विराजमान थे वो काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। उनका बातचीत करते हुए मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते। वादे बाकी लोगों ने वोट लेने के टाइम पर किए थे, जिनको वोट मिले उन्होंने अपने वादों को वफा नहीं किया। गवर्नर साहब के पास ये हक़ नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगाएं। तो गवर्नर साहब सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि वो दस्तखत ना करें उसके ऊपर। तो उस सिचुएशन में जैसे ही 10 रोज़ ख़त्म होंगे, 11वें रोज़ जो है उसका नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। जो केएमसी के अहकामात हैं उससे पहले ही, चूँकि मुझे ख़ुद पौधों का, दरख्तों का शौक़ है, तो उससे पहले ही मैं पार्क्स की रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहा था। और जब मुझे केएमसी में आकर काम करने का मौका मिला तो मैंने और बढ़ चढ़ कर ये काम किया। और आज भी ये उस सिलसिले की कड़ी है कि हम पार्कों को खोल रहे हैं जो पार्क माजी में बंद थे। वो जो तफसीलात हैं, जो कागजात हैं, वो ये बताते हैं कि ज़मीन इस तरीके से बाइफरकेट हुई हुई है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अरशद वोहरा का कहना है कि नए कानून में 2013 से भी कम इख्तियारात दिए गए हैं, जो कि ज्यादती है। जबकि सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के बल्दियाती काले कानून को पूरा सूबा रद्द कर चुका। डॉक्टर इरशाद वोहरा की क़यादत में पाक सरजमीन पार्टी की आला सतह के वफ्द ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हलीम आदिल शेख के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद वोहरा ने कहा कि नए कवानीन में 2013 से भी कम इख्तियारात दिए गए हैं, ज्यादतियाँ की गई हैं। आइन में आर्टिकल 140 की सही तशरीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को NFC से 10,000 अरब रुपए से जायद मिले हैं। 90 दिन से ज्यादा बल्दियाती इदारों के इलेक्शन में फासला नहीं होना चाहिए। अवाम दुश्मन कानून है, जिसका बल्दियाती कानून का मकसद ये होता है कि आप आवाम को निचली सतह तक उसकी लीडरशिप दें, जहाँ पर उनके मसाइल हल हों। तो जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, हम आज भी हमने अपना मौक़िफ़ इनको पेश किया है, और वो यही है कि आर्टिकल 140A को आइन में सही तरीके से डिफाइन होना चाहिए। इस मौके पर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध के बल्दियाती काले कानून को पूरे सूबा रद्द कर चुका है। PSP का वफ्द आया और तफसीली बातचीत हुई। मिलकर कवानीन के खिलाफ सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे।
ہماری خواہش ہے کہ سب لوگ اس ایک نکاتی ایجنڈے پر، چونکہ ہم سب تمام پولیٹیکل اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز، سندھ کے عوام، اور میں کہتا ہوں کراچی بھی کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ، نواب شاہ، ٹنڈولا یار، مٹھی، سب کے عوام اس جو کالا قانون ہے اس کے خلاف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایجنڈے میں ہم سب کٹھے ہیں۔ پی ایس پی کے وفد میں ڈاکٹر ارشد وورا سمیت وائس چیئرمین شبیر احمد قائم خانی، سیکریٹری جنرل احسان صابر اور ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات شمشاد صدیقی شامل تھے۔ سندھ حکومت نے روٹیشن پالیسی کے تحت چارج چھوڑنے والے 8 افسران کی LPC روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے تمام افسران کی ACR میں مس کنڈکٹ رپورٹ شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ CM کی ہدایت پر سندھ حکومت نے 3 الگ الگ خطوط لکھ دیے۔ افسران کی آخری پے سلپ اور LPC روکنے کے لیے AG سندھ کو خط لکھا گیا ہے۔ تمام افسران کے ACR بک میں مس کنڈکٹ رپورٹ شامل کرنے کے لیے IG سندھ کے نام خط ارسال کیا گیا، جبکہ افسران کے خلاف رولز کی خلاف ورزی پر سزا کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سفارش کی گئی۔ سول سروس رولز، پولیس رولز کے تحت تمام افسران صوبے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں، گورنر ہاؤس سندھ میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے MKM کے 4 رکنی وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ اور عزیز افریدی PTI سے شامل ہوئے ہیں۔ ملاقات میں بلدیاتی بل کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں حسن عباس سے۔ حسن عباس، کہیے گا کس کس نے گفتگو کی ہے، کیا گفت و شنید ہوئی آج؟ جی دیکھیے، بالکل گورنر ہاؤس سندھ میں جو ہے وہ آج اہم ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر سندھ سے MKM کے 4 رکنی وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی۔ وفد کی سربراہی جو ہے وہ MKM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ جاوید حنیف، محمد حسین اور صادق افتخار جو تھے وہ شامل تھے۔ ساتھ ہی PTI کی جانب سے قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ اور عزیز افریدی جو تھے وہ PTI کی جانب سے شامل تھے۔ مختلف امور کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی، خصوصاً جو ہے وہ بلدیاتی بل جو لے کے آیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، اس میں جو بھی MKM کو تحفظات ہیں وہ تمام تر گورنر سندھ کے سامنے رکھے گئے، اور اس کے علاوہ ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی گئی۔ وفاق کے تحت جو کراچی شہر کے اندر جاری منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو مزید تیز کرنے کے لیے خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ سے گزارش کی کہ وفاق جو ہے وہ مزید منصوبوں کو کراچی کے اندر لانچ کرے تاکہ کراچی شہر کے جو شہری ہیں ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکے، کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ بہتری ہو سکے۔ حسن عباس، آپ کا شکریہ۔ MKM پاکستان نے ووٹرز کی رجسٹریشن کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا عملہ تربیت یافتہ ہے اور نہ ہی تمام گھروں پر پہنچ سکا ہے۔ MKM مرکز بہادر آباد پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کنور نوید جمیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے ووٹرز رجسٹریشن کے لیے محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کی خدمات حاصل کی ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ عوام کو فارم 13 بھی اضافی فراہم کیے جائیں اور ووٹر رجسٹریشن میں حائل مشکلات دور کی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گلستان جوہر میں لیزر گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کی رات کو رنگی مہران ٹاؤن میں نوجوان واصف ریاض کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں۔ لواحقین نے کیس کی تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ مقتول کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ واصف کو بے دردی سے مارا گیا، اس کے باوجود مقدمے میں اہلکاروں کا نام بھی شامل نہیں کیا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں دانیال سید سے جو اس وقت مقتول کے گھر پر موجود ہیں۔ دانیال، کہیے گا کیا کہنا ہے ورثہ کا، کیا ریزرویشنز ہیں انہیں؟ بالکل اس وقت موجود ہیں واصف ریاض مقتول کے گھر پہ، جنہیں 2 روز قبل کراچی کے علاقے گورنگی مہران ٹاؤن میں جعلی پولیس مقابلے میں بے دردی سے 5 گولیاں مار کر قتل کیا گیا، اور اس کے بعد لاش کو اسپتال میں کئی گھنٹے رکھا گیا ہے۔ اہل خانہ جو ہے انصاف کے منتظر ہیں۔ والدہ مقتول واصف ریاض کی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی، کیا مطالبہ ہے، کیا انصاف کی اپیل کریں گی آپ؟ میری مطالبہ ہے، اللہ مجھے انصاف چاہیے، میرے بیٹے کے خون کے بدلے میں خون چاہیے بس۔ جس نے گولی چلائی ہے، جہاں میرے بیٹے کا خون بہایا گیا وہیں اس کو سب کے سامنے سر عام گولی ماری جائے۔ جس طرح انہوں نے بے دردی سے گھسیٹا میرے بچے کو، کہاں تک لے کر گئے وہاں تک اس کو لے کے جا کے جہاں مرضی جائیں، پھر میرے کو بس انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بتائیے گا آخری کیا بات آپ کی گفتگو ہوئی، کیا فرمائش کی تھی، کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیا بتاؤں، میں دل کا ٹکڑا تھا میرا وہ۔ میں ہر
फन मौला, हर काम करने वाला, मेरी खिदमत गुजारी, काम घर का मेरे हर काम करता था वो। जब आ रहा था तो 5 मिनट पहले फ़ोन आया, अम्मी क्या पकाया है? मैंने कहा वेजिटेबल राइस बनाए बेटा, भूख लग रही है बहुत सख्त में, तैयार है तुम आओ तो सही। यहाँ आके खाना भी नहीं खाने नसीब हुआ उस बेचारे को, ना खुद खाया ना उसने किसी को खाने दिया। ये वालदा है मकतूल वासिफ रियाज की, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन माओं के लिए उनके लाल बहुत नायाब और बहुत कीमती होते हैं। जिस बेदर्दी से वासिफ रियाज को कत्ल किया गया, 5 गोलियां मारी गईं, यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन इस जुल्म के बावजूद जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनकी बेहिसी और जो उन्होंने रवैया अपनाया गया वो यकीनन बर्दाश्त से बाहर है। कराची के जो लोग हैं उनका भी ये मुतालबा है कि कब तक जाली मुकाबलों का सिलसिला जारी रहेगा और कब तक यूं ही किसी का बेटा और किसी के सुहाग को डाकू मानकर, डाकू समझकर कत्ल करते रहने का। डाकू समझ के कत्ल किया जाता रहेगा। दानियल सैयद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची बार के नौमुंतखब सदर अशफाक अली गलाल का सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वकला ने फूल निछावर किए हैं, हार पहनाए और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। नौमुंतखब सदर अशफाक अली गलाल कहते हैं कि नौजवान वकला के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची बार के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले नौ मुंतखब सदर एडवोकेट अशफाक अली गिलाल का सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर की, हार पहनाए और मिठाइयां भी तकसीम की। कराची बार के नौ मुंतखब सदर एडवोकेट अशफाक अली गिलाल कहते हैं कि नौजवान वकला के मसाइल हल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनको कंपनसेट करूँ, इनकी वेलफेयर की सूरत में कोई इनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। कुछ प्रोग्राम्स हैं मेरे जहन में और इंशाअल्लाह इनको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, इनको कंपनसेट करूंगा इनकी वेलफेयर की सूरत में। नौजवान वकला ने कहा कि नौ मुंतखब सदर से उम्मीदें वाबस्ता हैं। अशफाक अली गिलाल मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। इंशाअल्लाह जब प्रेसिडेंट हुए तो कुछ ना कुछ बाहर के लिए जरूर करेंगे, नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। हम अशफाक बाग को फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आज हम अशफाक गिलाल जो है जीत चुके हैं और हमें बहुत खुशी है और हम इस उम्मीद से हैं कि अशफाक गिलाल साहब जो है वकला के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उनसे बहुत पुरुमीद है और वो हमारे जो जितने भी उन्होंने इलेक्शन से पहले जो भी वादे और तकाजे हैं और जो इस बार इन तकाजों पे पूरा उतरती है वो इंशाल्लाह वो पूरे करके दिखाएंगे। सालाना इंतखाबात में एडवोकेट अशफाक अली गिलाल ने 1995 वोट हासिल करके सदारती नशिस्त पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। कैमरामैन हमजा के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। खेल के मैदान से आपको बताएं कि टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली दौरान मैच सीने की तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। आबिद अली की सेहत से मुतालिक पीसीबी के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल राउंड में KPK के खिलाफ मैच में आज 61 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे कि उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की। आबिद अली को फौरी तौर पर अमराज क़ल्ब के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें एक्यूवेट क्रोनरी सिंड्रोम की तशख़ीस हुई है। माहिर अमराज क़ल्ब ने उनके इलाज की निगरानी शुरू कर दी है। मुकम्मल इलाज के लिए PCB इस माहिर अमराज क़ल्ब से मुकम्मल राबते में है। इस वक्त उनकी हालत बेहतर बताई गई है। क्रिकेट बोर्ड ने परस्तारों से क्रिकेटर के लिए दुआओं की अपील की है। सिटी स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे 8 बजे की हेडलाइंस के साथ।